الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رب کا ذکر کرو، اللہ رب کے نام کا ذکر کرو ایک سوئی کے ساتھ۔ ایک جگہ اور بتایا گیا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایاما ما تدعوا فللہ الاسماء الحسنی، یا اللہ کا کر کے پکارو، یا رحمان کر کے پکارو، یا کسی بھی جو اللہ تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں ان کے ذریعے سے پکارو۔ پتہ چلا کہ اللہ کا نام کا ورد کرنا، ذکر کرنا یہ بھی صحیح ہے، اور اللہ کے صفاتی نام کا ذکر کرنا یہ بھی قرآن کے ذریعے ثابت ہے اور کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اب اس میں جو ہے رحمان، جو سب سے اہمیت اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، رحمان ہے۔ تو رحمان اس صفت کا نام ہے کہ جہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوئی ہے، ابتدا کو بیان کرے اس کا نام رحمان ہے۔ اور دوسرا رحمان کی صفت اس کو کہتے ہیں کہ اس میں اپنے اور بیگانے کو، ماننے والے نہ ماننے والے کو، چاہنے والے نہ چاہنے والے کو، دوست کو، مخالف کو، جو بھی ہو ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جیسے یہ زمین ہے، اللہ پاک نے زمین کو بنایا تو اس زمین پر ہر انسان، ہر طرح کا انسان بس رہا ہے، چاہے وہ موحد ہو، اسلام کا ماننے والا ہو، یا مشرک ہو، کافر ہو، ہر ایک کی طرف کو جو ہے سمجھے اللہ کی طرف سے فیض مل رہا ہے، اجازت ہے، اور اس طرح سے اس پہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو آرام ایک ماننے والے کے ساتھ ہے وہی آرام ہر نہ ماننے والے کے ساتھ ہے۔ تو یہ زمین اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس کے اوپر سورج کی جو روشنی ہے اگر نزدیک کر دیا جاتا تو اس کی گرمی سے لوگ مر جاتا، پریشان ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ یا اللہ پاک کی سورج کو بہت دور کر دیتے تو اس جاڑے سے انسان ختم ہو جاتا۔ تو انسان کے جینے کے لائق جیسی روشنی چاہیے اور جتنے گرمی کی ضرورت ہے اتنا ہی کیا گیا، اور یہ سب کے لیے کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے زمین کو جب اللہ پاک نے پانی پر پھیلایا تو یہ زمین ہلنے لگی، تو اس کے اوپر پہاڑ کو ٹھوک دیا گیا، جیسے کیل ٹھوک کر کے کسی لکڑی کو جوڑتے ہیں ہلنے سے، تو اس پہاڑ کا کیل اس زمین پر ٹھوک دیا گیا، جگہ جگہ پہاڑ کو رکھا گیا۔ پر اس پہاڑ سے جو فائدہ ہے وہ ہر آدمی، ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ماننے والا بھی اٹھا رہا ہے، نہ ماننے والا بھی اٹھا رہا ہے، مشرک بھی اٹھا رہا ہے، کافر بھی اٹھا رہا ہے، ملحد بھی اٹھا رہا ہے۔ ان کے پتھروں سے گھروں کو بنانا، سڑکوں کو بنانا، اور نہ جانے کتنے کاموں میں استعمال کرتے ہیں جو ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کو اکیلا بنا دیتا، جیسے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور اسی طرح تمام انسان کو بناتے جاتے تو انسان کی طبیعت نہیں لگتی۔ اس لیے اللہ پاک نے جیسے آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو نکالا اور جوڑا بنا دیا، تو اس طرح سے قیامت تک کے تمام انسانوں کو، ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، ہر ایک کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے جو مانتا ہے وہ بھی، اس کے لیے بھی نیند اللہ نے عطا کیا ہے کہ انسان سوتا ہے، دل دماغ صحیح ہوتا ہے، صحت اس کی اچھی ہوتی ہے۔ یہ وہ فوائد ہے جو ماننے والے نہ ماننے والے ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ اسی طریقے سے رات آتی ہے تو اس رات کے اندر جو ہے
इंसान कोई इबादतों में लग जाता है और कोई खुदा के नाफरमानियों में, शराब पीने में, चोरी करने में, गलत कामों में लग जाता है, और कुछ लोग वो हैं जो आराम में गुजारते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से रात तो बनाया है, लेकिन इसके अंदर सब तरह के लोग उससे फैजियाब हो रहे हैं। रात के अंधेरी का फ़ायदा उठा के इबादत करने वाले इबादत कर रहा है, गुनहगार गुनाहों में मुब्तला होता है। इसी तरह दिन को बनाया है तो अल्लाह ताला इस दिन के अंदर काम करने के लिए सभी को मौका दिया है, मानने वाले न मानने वाले जो भी है सबके लिए दिन को बनाया है। इसी तरह से आसमान, 7 आसमान ऊपर में बनाया है, इस आसमान के से मुस्तफीद होना सबका है। ऐसे ही अल्लाह पाक ने सूरज को बनाया है, और इसी तरह से जब उससे सब कुछ हो रहा है। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, अब यह सब मिला जुला हुआ है, तो इसको अल्लाह ताला क़यामत के रोज वंताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून हर एक को अलग करेंगे, बल्कि जमात भी बना देंगे। नमाजियों की अलग जमात होगी, रोज़ा रखने वालों की जमात होगी, हज करने वालों की जमात होगी, हाजियों की जमात होगी, गाजियों की जमात होगी। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़तातून अफ़वाजा, एक जमात बना दी जाएगी। तो उस दिन नेकोकारों को बदकारों से अलहदा कर देंगी। तो यह रहमान का जो सिफत है वो रहमत की इब्तिदा को भी बताता है और उमूम को भी बता रहा है। और रहीम उस सिफत को कहते हैं कि जो पूरे तौर पर उसको रहम किया जाए, व उसमें जो है न मानने वाले को ऊपर रहम नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी का भी रिश्तेदार हो, नबी का बाप हो, नबी का बेटा हो, नबी की बीवी हो, उस तक को भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि ऐलान है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। तो शिर्क करने वाले को अल्लाह नहीं बख्शेगा, उसके अलावा अल्लाह जिसको चाहेगा उसकी मग़फ़िरत फरमाएंगे, उसको जन्नत में देंगे और हमेशा हमेश के लिए रहेंगे, वहाँ पर ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने अपनी परेशानियों का तज़किरा किया और कहा कि अल्लाह से आप दुआ कीजिए कि हमारी परेशानी भी दूर हो जाए और हमें अल्लाह की तरफ से रहमत और इनाम भी मिल जाए। तो उसकी तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त रखा, दुआ किया कि अल्लाह इस शख्स को आप अपनी तरफ से रहमत दीजिए और इसके सारे कामों को बना दीजिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनाम दीजिए। तो अल्लाह पाक ने कहा कि ऐ मूसा, इसको इनके हिसाब से देंगे जो मांग रहा है, या हम अपने हिसाब से देंगे, ताकि या परवरदिगार आलम आप अपने शान करीमी के हिसाब से उसको अता फरमा दी। तो उस शख्स की मौत हो गई। अब जब मालूम हुआ कि वो आदमी मर गया है तो बड़ा अफसोस हुआ कि साहब जिसने दुआ कराया उसकी तकलीफ दूर होती, उसका अल्लाह तरफ से इनाम इकराम मिलता, और वो आदमी मर गया। तो अल्लाह से सवाल किया कि या अल्लाह ये क्या हो गया, मैंने इसको रहमत के लिए और आपसे तरह से इनाम देने के लिए मैंने दुआ किया था। तो कहा तुमने तो कहा था कि अपने हिसाब से देना, तो दुनिया के हिसाब से उनको जितनी ज़रूरत थी वो दिया जा सकता था, लेकिन कहा कि आप अपने हिसाब से दीजिए। तो अब तुम ही बताओ कि एक इंसान को जो अदना दर्जे जन्नती है, इस सारे दुनिया के 10 गुनी बड़ी जन्नत, एक ईंट सोना और एक ईंट चांदी की और मुश्क अंबर का गारा हो और उसमें तो उस तरह का चीज़ यहाँ कैसे दिया जा सकता है? यहाँ उसकी गुंजाइश नहीं, तो अपने हिसाब से मैं आखिरत में दूंगा, उसको रहीम बोलते हैं। अब उसके बाद जो है एक नाम जिसमें इसमें आज़म भी लोग कहते हैं, बताते हैं, वो या हय्यु या कय्यूम है के माने हयात के है। तो अल्लाह ताला अपनी ज़ात से ज़िंदा है, वो किसी चीज़ को खा के ज़िंदा नहीं है, कोई चीज़ पी कर ज़िंदा नहीं है, हवा का सांस लेकर के ज़िंदा नहीं। अल्लाह अपनी उसकी सिफत है हयात होना, है होना, वह अपने तौर पर हयात है। और उन्होंने तमाम चीज़ों के अंदर हयात जो रखा है तो किसी जरिए से रखा है,
जैसा कुरान में ऐलान है वजालना मिनल माए कुल्ल शैइन हय्यिन, कि हमने हर चीज़ को पानी से जिंदा रखा है। तो जिस चीज़ को भी आप गौर करेंगे तो उसका वजूद कहीं न कहीं पानी से ही मिला हुआ आपको मालूम होगा। चाहे वो जो घर बन रहा है उसको देख लीजिए, चाहे ज़मीन हो, दरख्त हो, जो कुछ इंसान चरिंद परिंद जो कुछ आपको नज़र में आता है उसकी हयात का वो जो है उसका बका का ताल्लुक, हयात का ताल्लुक पानी से। तो अल्लाह ताला अपनी ज़ात अपनी सिफत के एतबार से है और दूसरी चीज़ें जो है पानी के जरिए से किसी जरिए से उनकी हयात नज़र आ रही। इसी तरीके से अल्लाह को या कय्यूम उसकी सिफाती नाम है। तो अल्लाह ताला किसी चीज़ के सहारे कायम नहीं है, खड़ा है। इंसान को ज़र्फ चाहिए, नीचे ज़मीन चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए। पहाड़ को रखा है तो पानी मिट्टी पर रखा है, मिट्टी को देखा जाए पानी पर रखा है, पानी को देखा जाए तो वो भी किसी चीज़ पर है। इसी तरह से हर चीज़ किसी न किसी सहारे कायम है। बिला सहारा के अगर आसमान कायम है बगैर मदीन तरवनहा, तो अल्लाह पाक की तरफ से उसकी रबूबियत है। अगर अल्लाह ताला की रबूबियत ना हो तो यह आसमान बगैर खंभा के बगैर सहारा के कायम नहीं रह सके। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत को दिखाने के लिए इतनी बड़ी मोटे आसमान 500 साल की मसाफत की दूरी के वजनी और मोटे आसमान को, साथ साथ आसमान को बगैर खंभा के रख कर के अपनी कुदरत का इजहार किया। और बाकी चीज़ों को किसी को सहारा, किसी को बगैर सहारा। अब ये परिंदे जो है उड़ता है, मायूम से रहमान, ये परिंदे को जो उड़ता हुआ देखते हैं ये परों का तो एक जरिया है, सहारा है, पर उसको हवा में रखने वाली जात वो अल्लाह की है। तो उसको रहमान ही उसको ऊपर में बाकी रखता है। तो मेरे भाइयों और मोहतरम बुजुर्गों, ये जो है या हय्यो या कय्यूम, यह इसमें आज़म इसमें बताते हैं कबूलियत का। जिस दुआ में या हय्यो या कय्यूम कहा जाए वो दुआओं के भी कबूल होने का उम्मीद बनती है। और एक नाम अल्लाह का सिफाती या नूर है। कुरान में ऐलान है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, या आसमान में और ज़मीन में जो तुम्हें रोशनी नज़र आ रही है, जो तुम्हें नूर नज़र आ रहा है, वो उनका अपना नूर नहीं है बल्कि अल्लाह के तरफ से वो नूर है। अल्लाह नूर है। तो अल्लाह का नूर जो है अर्श से लेकर सूरज में आना, मरीख में आना, ज़मीन पर पड़ना, इंसान के आँख में भी नूर है। पर यह नूर ऐसी है कि इसको दूसरे नूर का, दूसरे रोशनी का सहारा है। आँख में रोशनी है लेकिन बिल्कुल अंधेरे में रख दिया जाए तो ये आँख नहीं देख सकती है। इसी तरह अकल के अंदर भी अल्लाह ने नूर रखा है। उस नूर की बरकत से, उसके जरिए से अकल समझती है। आवाज़ के जरिए से, देखने के जरिए से, चखने के जरिए से, सूंघने के जरिए से, छूने के जरिए से, ये 5 हवा से खमसा ज़ाहिरा व जो बातना है उसको अकल कंट्रोल करती है, उसके जरिए मालूमात हासिल करती है और अकल के जरिए वो काम करती है। पर यह अकल अपनी ज़ात में बिल्कुल मुतलकुल अनान नहीं, बल्कि बगैर दिल से पूछे हुए, कल्ब से मशवरा लिए उसके फैसला के बगैर अकल काम नहीं करती है। तो नूर पूरे आलम में जो है वो अल्लाह की तरफ से नूर आया है। अब हम कह सकते हैं बुजुर्गान दीन के यहाँ एक फैज़ रहमत बोलते हैं। उस फैज़ रहमत के अंदर या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या हय्यो या कय्यूम या नूर, एक नाम ज़ात का 5 नाम सिफाती, इन 6 को मिला करके एक तस्बीह पढ़ेंगे और इस तरह एक एक दाना करके हटाएंगे। 100 तस्बीह है तो इस तरह 100 तस्बीह होगी। और अगर कोई इसको 1.25 लाख पढ़ ले, 1,25,000, तो ये फैज़ रहमत का अमल है। शांति बाग में मौलाना अब्दुल खालिक हुसैनी के यहाँ, वहाँ पर जो है जो लोग ठहरते थे तो उन्हें यह जिक्र बताया जाता था। तो फैज़ रहमत जो है इसमें या अल्लाह या रहमानो या रहीम या हय्यो या कय्यूम या नूरो, यह एक तस्बीह हुई। फिर दोबारा पढ़ेंगे 2 बार। इस तरह जो 1.25 लाख फैज़ रहमत पूरा करेगा इसके फ़वाइद को वो महसूस करेगा।
بہرحال پچھلے جمعرات کو میں نے آیت کریمہ کے بارے میں بتایا تھا. آج اس فیض رحمت کے بارے میں آپ کے سامنے بتایا گیا ہے. اللہ کرے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا